So ये बात है 27th April 2024 की. I was looking at myself in the mirror and I was not happy. So I had two choices. One, get comfortable with how I was looking now, or take one step further and take full control and change the way how I look. Definitely I chose the second one. But सिर्फ decide करने से I was not going to change myself. First I needed to tell my mind that you can't control me anymore, and afterwards I took the control in my hands and started my transformation journey. I started waking up early, and first thing in the morning I used to go to run, and to be very honest, it really sucked waking up every day at 5 a.m. and go to the run. But I kept telling myself that you need to change, and so I kept doing it. And also running के बाद I used to hit the gym 2 hours straight, but sadly that resulted me in losing muscles than losing fat. I didn't realize it for the first few days, but when I looked back in the mirror, I was not happy again and even more depressed. So once again, I needed to take pen and paper and reorganize some things. And when I did that, I started to see losing fat and build muscle at the same time. This is my 1 month of transformation. I wish a void opened in the air to suck me up, 'cause I really don't care. While I'm falling, I wondered if you would miss me when I'm gone. While I'm falling, I wondered if you would miss me when I am gone. I feel so hollow, hollow inside, hollow inside. Promise me everything, promise me everything, but please don't lie. If you want to build muscle and lose fat at the same time, you really need to focus on a few things, which I will be telling you now. But before that, अगर आप चैनल पे नए हो तो go hit the subscribe button and hit the bell icon as well. Because you are not alone, we are all in this together. The first and the most important thing when it comes to build muscle and lose fat at the same time is your nutrition. Your diet plays a very important role when it comes to build muscle and lose fat at the same time. आपको कुछ चीजें बंद करनी पड़ेगी. First thing, आपको जंक फूड क्विट करना पड़ेगा. जंक फूड खाने से आप ओवर ईटिंग करोगे, एंड ओवर ईटिंग से आप unnecessary fat put on करोगे, which will eventually slow down your process. अगर आपको ओवर ईटिंग स्टॉप करनी है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग you really need to do is finding your maintenance calories. Maintenance calories वो कैलोरीज होती है जो खाने से हमारा वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा. अपने करंट बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए हम जो कैलोरीज खाते हैं उसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं. अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाओगे तो आप वेट गेन करोगे. अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे तो आप वेट लूज करोगे. That's the very simple funda of it. And if you guys don't know how to calculate your maintenance calories, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ड्रॉप कर दी है. You guys go check it out. आपको वहां जाके बस कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, एंड जब आप डिटेल्स फिल करोगे तब आपके सामने एक नंबर आएगा, वो होगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज. नाउ अगर आपका गोल फैट लॉस है एट द सेम टाइम बिल्डिंग मसल, तो यू नीड टू बी इन अ कैलोरी डिफिशिट. कैलोरी डिफिशिट का मतलब है अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 to 300 कैलोरीज कम खाना, व्हाइल कीपिंग योर प्रोटीन इंटेक हाई. एज आई सेड कि आपको एक कैलोरी डेफिसिट के साथ आपका प्रोटीन इंटेक हाई रखना चाहिए, एंड टू कैलकुलेट दैट टेक योर बॉडी वेट एंड मल्टीप्लाई इट विथ 2.2 grams. That will be your protein goal. For example, my body weight is 80 kgs, and if I multiply 80 kg with 2.2, then the outcome will be 176 gram of protein.
तो मुझे 176 ग्राम ऑफ प्रोटीन हर दिन कंज्यूम करना पड़ेगा while being in a calorie deficit in order to lose fat and build muscle at the same time. Second important thing is your training. You guys already know कि एक optimal muscle growth के लिए आपको हर muscle group को twice a week train करना होता है and twice a week train करने के साथ साथ आपको हर muscle group के weekly 10 to 20 sets परफॉर्म करने होते हैं। अगर आपको हर मसल ग्रुप को ट्वाइस अ वीक ट्रेन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ इस प्रकार का वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो। मंडे को चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, ट्यूसडे को बैक एंड बाइसेप, वेडनेसडे को लेग्स, थर्सडे को चेस्ट, शोल्डर, फ्राइडे को बैक एंड सैटरडे को आर्म्स, दैट इज योर बाइसेप एंड ट्राइसेप, एंड संडे विल बी योर रेस्ट डे. This is my current workout program and so far I am getting pretty good result by doing it. And if you guys want a personalized workout program, so comment down workout plan and your goals. So I will personally tell you your workout program according to your goal. एक कैलोरी डेफिशिट में होने के साथ आपकी स्ट्रेंथ लूज होना एक बहुत नॉर्मल चीज है एंड मसल ग्रोथ के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है. बट as you are in a calorie deficit, you will find it difficult to do that. So the question is, what should we do now? Suppose आप बेंच प्रेस लगा रहे हो एंड कैलोरी डेफिशिट में होने के साथ साथ आप वहां पे हेवी नहीं जा सकते, तो इन दैट केस आपको एक ऐसा वेट चूज करना है जिसमें आप 8 to 12 रेप्स में फेल हो while focusing on slow eccentric reps. अगर आप वेट को सिर्फ अप एंड डाउन मूव करोगे तो इट विल बी कंप्लीटली पॉइंटलेस. इंस्टेड आप स्लो नेगेटिव पे फोकस करो. बाय डूइंग दैट यू योरसेल्फ गोइंग टू सी द रिजल्ट्स. फर्स्ट आपको एक पर्टिकुलर रेप गोल रखना चाहिए. सपोज आप 25 kg डंबल के साथ अपने चेस्ट डे पे तीनों भी सेट्स में 7 to 8 रेप्स में फेल हो रहे हो. जब आपका नेक्स्ट चेस्ट डे होगा तब आप 9 to 10 रेप्स में फेल करने की कोशिश करो एंड जब तक आपको तीनों भी सेट्स में 12 रेप्स नहीं आते एक स्लो एंड नेगेटिव वे में, तब तक वेट इंक्रीज करने की सोचोगे मत. वंस यू गेट 3 सेट्स ऑफ 12 reps in a very slow and negative way at 2 kg weight on the next chest day and repeat the same process. That's how you do progressive overload by reaching to failure. अगर आप 7 to 8 reps में फेल हो रहे हो and struggling to get 12 reps in 3 sets, in that case आप एक और सेट परफॉर्म कर सकते हो एंड उसमें भी 7 to 8 रेप में फेल कर सकते हो. वैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि वेट इंक्रीज करना, सेट इंक्रीज करना, रेप्स इंक्रीज करना, लास्टली फेलियर तक ट्रेन करना. थर्ड पॉइंट इज योर कार्डियो. कार्डियो इस फैट लॉस जर्नी में आपका बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगा. कार्डियो से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करोगे जिसके कारण आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना खा सकते हो. आप किसी भी टाइप का कार्डियो कर सकते हो, लाइक रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग. आई पर्सनली लाइक टू वॉक कॉज द कार्डियो आई वॉन्ट इज नॉट रिप्लाइंग मी. एक पर्टिकुलर गोल सेट करो कि मुझे इतने इतने टाइम ड्यूरेशन में ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. फॉर एग्जाम्पल मैं हर रोज 10K स्टेप्स कंप्लीट करने का गोल रखता हूँ एंड टू ट्रैक दैट आई यूज माई फोन स्टेप ट्रैकर. अब 10K स्टेप्स करने के लिए चाहे मुझे 2 घंटे लगे या 50 मिनट्स, आई कंप्लीट माई 10K स्टेप्स एवरी डे एनी हाउ. ऑल्सो कार्डियो करने से आपका हार्ट हेल्दी रहता है एंड एज यू गाइज नो कि हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है. तो ट्रेन योर हार्ट टू, जस्ट डोंट लेट इट ब्रेक. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस. फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज रिकवरी. आपको हर रोज 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप कंप्लीट करनी ही होगी. नींद हमारे बॉडी की हर मसल ग्रुप के फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है. एक स्टडी है जिसमें 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया था. एक ग्रुप जो नॉर्मली 8 घंटों के लिए सोया एंड एक ग्रुप जो सिर्फ 6 घंटों के लिए सोया. और 8 हफ्ते बाद द रिजल्ट्स वर शॉकिंग. जो ग्रुप जो 8 घंटे के लिए सोया उसने फैट लूज किया एंड जो ग्रुप जो सिर्फ 6 घंटे के लिए सोया उसने कंपैरेटिवली मसल लॉस किया. टू समराइज, गो स्लीप. देर रात तक रील्स देखने की बजाय गो हैव अ गुड नाइट स्लीप.
To summarize all things: nutrition, training, cardio and recovery. These are the 4 things that will help you lose fat and build muscle at the same time. If you just focus on these 4 points, you yourself gonna see losing fat and building muscle at the same time. I hope you guys liked the video, and if you found this video informative, please like the video and share it with your one friend and subscribe to my channel. And if you guys wanna ask me anything about nutrition and training, feel free to comment down below, and I'll see you guys in the next video. Till then, peace out.